हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मैं हूं एकलव्य। बात करें नेशनल करंट अफेयर्स 6 मई 2026 का है। चलिए शुरू करते हैं। इन द जॉइंट स्टेटमेंट रिलीज्ड ऑन May 6, 2026, India and Vietnam agreed to elevate their bilateral relations to which specific status to mark 10th anniversary of their strategic partnership. Option A, Comprehensive Global Partnership. Option B, Enhanced Comprehensive Strategic Partnership. Option C, Strategic Diplomacy Alliance. Option D, विकसित भारत विकसित विजन 2045 कॉपरेशन. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, एनहांस्ड कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप. ठीक है. अगर वियतनाम की बात किया जाए, वियतनाम किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है ना? शेयर्स लैंड बॉर्डर्स विथ चाइना टू द नॉर्थ, लाओस एंड कंबोडिया टू द वेस्ट, द साउथ चाइना सी टू द ईस्ट एंड साउथ. और इसका कैपिटल क्या है ना? हानोई. और करेंसी वियतनामीज डोंग. वियतनामीज डोंग. ठीक है. यहाँ ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर, एनहांस्ड कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप. ठीक है, इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, ड्यूरिंग प्रेसिडेंट टू लाम्स विजिट ऑन May 6, 2026, both nations agreed to elevate ties to an enhanced comprehensive strategic partnership to align India's विकसित भारत 2047 with Vietnam's vision 2045. ठीक है. नेक्स्ट, Union Minister Ashwini Vaishnav officially notified the creation of a new railway zone on May 6, 2026, identified the zone its newly designated headquarters. हाल ही में यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने ऑफिशियली नोटिफाई किया फॉर द क्रिएशन ऑफ न्यू रेलवे जोन. कौन सा रेलवे जोन की बात कर रहे हैं? इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? ऑप्शन है ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर, साउथ कोस्ट रेलवे विशाखापट्टनम, ऑप्शन सी सेंट्रल मैरीटाइम रेलवे चेन्नई, या ऑप्शन डी साउथ ईस्ट पेनिनसुलर रेलवे विजयवाड़ा. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, साउथ कोस्ट रेलवे विशाखापट्टनम. ठीक है, ऑप्शन बी. नेक्स्ट, on May 6, 2026, the Ministry of Railways officially notified the South Coast Railway Zone with its headquarters at Visakhapatnam, Andhra Pradesh. Next, the Ministry of Power revised the Make in India procurement norms for high voltage direct current HVDC substation on May 6, 2026. What is the newly mandated target for local content by the financial year 2034-35? Option A 50%, option B 75%, option C 60%, option D 100%. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 100%. ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. हाँ सॉरी 60%. 60%. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 60%. ठीक है, इसका टारगेट 60% है. नेक्स्ट,
The revised roadmap mandates a phased increase in local content starting from 30% in financial year 28 and reaching a final target of 60% by फाइनेंशियल ईयर 35 2034-35। ठीक है। नेक्स्ट, द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर MOHFW released a guidance document on diabetes mellitus in children on May 6, 2026, which specific awareness framework was introduced for early detection of type 1 diabetes. Option A, the 4 D's: delay, deficit, disease and defect. Option B, the 4 T's: toilet, thirsty, tired, thinner. Option C, the SMART framework. या option D, the NLEAF protocol. Option B is the correct answer. The 4 T's: toilet, thirsty, tired and thinner. ये डायबिटीज टाइप 1 का सिम्टम है। ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द 4 T's framework toilet, thirsty, tired, thinner was launched at the National Summit in Chandigarh to help parents and teachers identify type 1 diabetes symptoms early. Next, on May 6, 2026, the Ministry of Education launched the Revised School Management Committee SMC Guidelines 2026 as per the Right to Education Act, and these guidelines, what is the minimum percentage of parents or guardians required in SMC? SMC क्या है? School Management Committee SMC। ऑप्शन ए, कितना मिनिमम परसेंटेज ऑफ गार्डियंस रिक्वायर ना? ऑप्शन ए 50%, ऑप्शन बी 66%, ऑप्शन सी 75%, ऑप्शन डी 80%। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 75% रिक्वायर, मिनिमम रिक्वायरमेंट। ठीक है, गार्डियन का कहाँ ना? स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के तहत। ठीक है, ऑप्शन सी 75%। नेक्स्ट, the revised 2026 guidelines reinforce that SMCs must consist of at least 75% parents or guardians to ensure community driven school governance under NEP 2020। next, नीति आयोग launched a new digital tool on May 6, 2026 to strengthen real-time field reporting and last mile delivery. Name this portal. ऑप्शन ए विकसित ग्राम पोर्टल, ऑप्शन बी सेंट्रल प्रभारी ऑफिसर CPO पोर्टल, ऑप्शन सी PM गति शक्ति 2.0 पोर्टल या ऑप्शन डी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट डेल्टा ट्रैकर। ये लास्ट माइल डिलीवरी का बात कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ आएगा ऑप्शन सी नहीं होगा क्योंकि गति शक्ति 2.0 सिर्फ हाईवे में जाता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, सेंट्रल प्रभारी ऑफिसर CPO पोर्टल। ठीक है, हाल ही में लॉन्च किया क्या? सेंट्रल प्रभारी ऑफिसर CPO पोर्टल। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगर नीति आयोग की बात किया जाए, नीति आयोग इसका फुल फॉर्म क्या है? नीति आयोग का नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या?
नीति का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। कब एस्टेब्लिश हुआ था ना? 2015 जनवरी 1, जनवरी 1। ठीक है, इसका नेचर कैसा है? किसका? नीति आयोग का नेचर कैसा है? एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन स्टैट्यूटरी, नॉन स्टैट्यूटरी एंड एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ए नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है बट एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी है। ठीक है, ये काम कैसा करता है? ये एक्ट्स एज ए थिंक टैंक ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, थिंक टैंक ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, और इसका अप्रोच कैसा है ना? बॉटम टॉप अप्रोच, बॉटम अप अप्रोच। इसका अप्रोच कैसा है? बॉटम अप अप्रोच। ठीक है, जो विलेज, फिर स्टेट आता है, फिर सेंटर आता है। अच्छा से लिख देता हूं, विलेज, स्टेट, फिर आता है सेंटर। ठीक है, बॉटम टू टॉप। विलेज ग्राउंड लेवल पे आता है बॉटम में, और सेंटर टॉप में आता है। ठीक है, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर। सेंट्रल प्रभारी ऑफिसर पोर्टल लॉन्च किया था नीति आयोग ने। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, The Bureau of Indian Standards (BIS) published 6 new standards for priority medical assistive technologies on May 6, 2026. Which specific product is covered under IS 18558 Part 4 2025? Option A, electronic hearing aids. Option B, tactile walking sticks. Option C, multi-leg walking sticks. Option D, automated wheelchairs. Option C is the correct answer, multi-leg walking sticks. ठीक है, आता है कवर अंडर IS 18558 पार्ट 4 2025। ठीक है, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। अगर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS की बात किया जाए, ये पहले क्या नाम पे जाना जाता था ना? इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूशन 1947, ISI 1947। ठीक है, और BIS कब बना ना? न्यू एक्ट BIS एक्ट 2016 में के तहत। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? हेडक्वार्टर्स मानक भवन न्यू दिल्ली। किसका बात कर रहे हैं? BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, मानक भवन न्यू दिल्ली। और याद रखिए, एग्जाम में पूछेगा कि ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी। ठीक है, और ये काम करता है किसके अंडर ना? मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। BIS किसके अंडर काम आता है, काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ
कंज्यूमर अफेयर्स। ठीक है, सो यहाँ क्या कौन सा ऑप्शन सही है? यहाँ मल्टी लेग वॉकिंग स्टिक्स, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर अंडर IS 18558 पार्ट 4 2025। याद रख लीजिएगा, ऑप्शन सी मल्टी लेग वॉकिंग स्टिक्स। नेक्स्ट, BIS published standards for the National List of Essential Assistive Products NLEAP और मई 6 2026 इंक्लूडिंग IS 18558 पार्ट 4 for multi-leg walking sticks. Next, the Union Cabinet approved a new mission on May 6 2026 to address pink bollworm infestation and improve textile sector yields. What is the name of this mission? Pink bollworm. Option A, Mission for Cotton and Productivity. Option B, Operation White Gold. Option C, National Fiber Security Mission. Option D, PM Kisan Textile under Integrated Scheme. Option A is the correct answer, Mission for Cotton Productivity. Option A, Mission for Cotton Productivity. ये क्यों है ना, आप रिलेट कर सकते हैं टेक्सटाइल इंप्रूव टेक्सटाइल सेक्टर यील्ड्स की जब बात कर रहे हैं तो प्रोडक्टिविटी वर्ड रिलेट कर रहे हैं, मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर पिंक बॉलवर्म की बात किया जाए इसका मतलब क्या है? पिंक बॉलवर्म ये एक कीड़ा है। ठीक है, एक कीड़ा है। पिंक बॉलवर्म PBW टेक्सटाइल सेक्टर के लिए एक बड़ा हेडेक है क्योंकि ये डायरेक्टली व्हाइट गोल्ड यानी कॉटन की क्वालिटी और क्वांटिटी को बर्बाद करता है। क्या करता है? कॉटन की क्वालिटी और क्वांटिटी को बर्बाद करता है। इसलिए यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड ए न्यू मिशन to address pink bollworm infestation and improve textile quality yields. ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, a mission for cotton productivity was approved on May 6 2026 focusing on high tech seeds and pest control to support the textile industry. Next, on May 6 2026 Ministry of Defense signed a contract worth Rs 14.76 billion with Bharat Electronics Limited BEL. What is the primary purpose of this contract? Option A, indigenous 5G for borders. Option B, ground based electronic system. Option C, anti-drone laser technology. Option D, stealth frigate sensors. Option B is the correct answer, ground based electronic system. ठीक है, हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने
एक साइन किया कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL। इसका प्राइमरी पर्पज क्या था ना, ग्राउंड बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए ये साइन किए। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, SEBI announced the formation of a dedicated task force on May 6, 2026. What is the primary objective of this task force? Option A, regulating crypto exchanges. Option B, monitoring penny stocks. Option C, tackling AI-driven cyber threats. Option D, overseeing ESG disclosures. हाल ही में सेबी ने फॉर्मेशन ऑफ डेडिकेटेड टास्क फोर्स किया, मतलब एक टास्क फोर्स बनाया जिसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है पूछ रहे हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, टैकलिंग AI ड्रिवन साइबर थ्रेट्स। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए जानते हैं सेबी के बारे में थोड़ा। सेबी ये कब बना था, 1988 अप्रैल 12। ठीक है, ये पहले नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी था। पहले 1988 में जो बना अप्रैल 12 को नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी था, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी। बाद में स्टैट्यूटरी बॉडी का पावर मिला कब, नाइनटीन 1992 को स्टैट्यूटरी बॉडी का पावर मिला 1992। एस्टैब्लिश कब हुआ, 1988, तब नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी था। लेकिन स्टैट्यूटरी बॉडी कब हुआ ना, 1992। इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, मुंबई। और इसका लोकल ऑफिसेस कहाँ कहाँ पर है, न्यू दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, अहमदाबाद, 4 जगहों पर है। ठीक है, ये काम कैसा करता है, इट इज ए क्वासी लेजिस्लेटिव, क्वासी एग्जीक्यूटिव एंड क्वासी जुडिशियल बॉडी। ये क्या है, इट इज ए क्वासी लेजिस्लेटिव, क्वासी एग्जीक्यूटिव एंड क्वासी जुडिशियल बॉडी है। क्वासी लेजिस्लेटिव का मतलब रेगुलेशंस को ड्राफ्ट करता है। क्वासी एग्जीक्यूटिव का मतलब इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करता है। क्वासी जुडिशियल का मतलब रूलिंग एंड पेनल्टीज पास करता है। ठीक है, फिर से कहता हूं इट इज ए क्वासी लेजिस्लेटिव, क्वासी एग्जीक्यूटिव एंड क्वासी जुडिशियल बॉडी है। ठीक है, नेक्स्ट, यहां ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी, टैकलिंग AI ड्रिवन साइबर थ्रेट्स। नेक्स्ट,
द सीबीआई conducted a major operation on May 6, 2026 to boost a network involving cyber slavery, where were Indian nationals primarily being trafficked for these forced cyber crimes? Option A, Western Europe. Option B, Southeast Asia. Option C, North America. Option D, West Asia. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। साउथ ईस्ट एशिया को कहाँ ट्रैफिक हो रहे हैं, ठीक है, और किसके द्वारा कंडक्ट किया गया था ना, सीबीआई के द्वारा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, साउथ ईस्ट। इंडियन नेशनल्स were being trafficked primarily to the Southeast Asia, ठीक है, for these forced cyber crimes. Option B is the correct answer, Southeast Asia. Next, the cabinet approved the 5.0 version of which major credit scheme on May 6, 2026 to support sectors like hospitality and travel? Option A, PM Sonidhi. Option B, Emergency Credit Line Guarantee Scheme, ECLGS. Option C, मुद्रा शिशु लोन. ऑप्शन डी, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंटरप्राइजेस। जब हॉस्पिटैलिटी और ट्रैवल की बात किया जाए तो ये इमरजेंसी वार्ड से रिलेट हो पा रहा, इमरजेंसी क्रेडिट गारंटी स्कीम ECLGS, ठीक है, टू सपोर्ट सेक्टर्स लाइक हॉस्पिटैलिटी एंड ट्रैवल, emergency credit line guarantee scheme, ECLGS. Option B is the correct answer. Option B. Next, the finance minister notified that overseas companies with Chinese Hong Kong shareholding इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा गलत है, ठीक है। नेक्स्ट, मैं यहां समझा देता हूं। द ECLGS 5.0 was approved on May 6, 2026 extending collateral free loans specially targeted at the post pandemic recovery of the hospitality and tourism sector, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, Coal India Limited CIL commissioned its first major 100 megawatt solar plant on May 6, 2026. In which state is this plant located? Coal India Limited CIL कहाँ पर है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात या ऑप्शन डी झारखंड।
ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर, गुजरात। बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये हाल ही में जो क्राइसिस हुआ था, कौन सा क्राइसिस ना, एलपीजी सप्लाई का जो क्राइसिस हुआ था, उसमें क्या सीआईएल ने प्रमुख भूमिका ग्रहण किया था। ठीक है, और इसको डायरेक्टिव जारी किया गया था कि टू डिस्ट्रीब्यूट एडिशनल कोल टू लोकल कंज्यूमर्स। ठीक है, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। कोल इंडिया लिमिटेड कहां पर है ना, गुजरात। नेक्स्ट, In a historic feat on May 6, 2026, Kuldeep Kumar broke the national men's record in which athletic event at the Indian Indoor Open in Bhubaneswar? Option A high jump, option B pole vault, option C triple jump या option D short put। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर, पोल वॉल्ट। ठीक है, कुलदीप कुमार कहां से हैं ये, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। ब्रोक द, हाल ही में कुलदीप कुमार ब्रोक द नेशनल मेंस रिकॉर्ड इन पोल वॉल्ट एथलेटिक इवेंट एट द इंडियन इंडोर ओपन इन भुवनेश्वर, भुवनेश्वर में हुआ था। ठीक है, और ये कौन सा गेम जीते, पोल वॉल्ट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, The Department of Financial Services DFS approved a major reform plan for regional rural banks RRBs on May 6, 2026. What is the name of this plan? हाल ही में डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज DFC एक मेजर रिफॉर्म किया फॉर RRBs के लिए। ये कौन सा प्लान बता रहा, ऑप्शन ए RRB विकास 2030, ऑप्शन बी वायबिलिटी प्लान 2.0, ऑप्शन सी रूरल क्रेडिट कंसोलिडेशन एक्ट, ऑप्शन डी नाबार्ड RRB रिफॉर्म फ्रेमवर्क। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर, वायबिलिटी प्लान 2.0। ठीक है, अगर रीजनल रूरल बैंक की बात किया जाए, रीजनल रूरल बैंक, चलिए समझते हैं थोड़ा। कब एस्टेब्लिशमेंट हुआ था ना, 1975। बेस्ड ऑन रिकमेंडेशंस ऑफ नरसिम्हा वर्किंग ग्रुप। ठीक है, नरसिम्हा वर्किंग ग्रुप। और इसका पहला जो रीजनल रूरल बैंक कहां पर हुआ, सेटअप हुआ, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश, मुरादाबाद, सॉरी किसका बात कर रहे हैं हम ना, रीजनल रूरल बैंक्स का बात कर रहे हैं। कहां पर पहला जो प्रथम ग्रामीण बैंक कहां पर हुआ ना, मुरादाबाद,
मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश। और किसके द्वारा स्पॉन्सर किया गया था ना, सिंडिकेट बैंक, सिंडिकेट बैंक, ठीक है। और ये रेगुलेटेड बाय द रीजनल रूरल बैंक्स एक्ट 1976। और याद रखने की बात है कि आरआरबी रीजनल रूरल बैंक्स रेगुलेटेड बाय द आरबीआई बट सुपरवाइज्ड बाय नाबार्ड, ठीक है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि रीजनल रूरल बैंक रेगुलेटेड बाय द आरबीआई बट सुपरवाइज्ड बाय नाबार्ड, ठीक है। नेक्स्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। एंड अगर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, आप लोगों को पता ही होगा कहाँ जाना है, govteka.com। आप डेली आप विजिट कीजिए। करंट अफेयर्स आपको नेशनल, इंटरनेशनल, डेली का मिलेगा और वीकली का भी मिलेगा। और इसके अलावा आप टॉपिक वाइज, जैसे कि डिफेंस सेक्टर हो गया या हमारा भारी सेक्टर हो गया, आप जाके देख सकते हैं। वीकली, मंथली और 6 मंथ, लास्ट 6 मंथ और ईयरली का भी आप लोगों को करंट अफेयर्स मिल जाएगा, ठीक है। 60 मिनट का एग्जाम ड्यूरेशन होगा, सॉरी 40 मिनट का होगा और 60 क्वेश्चन होंगे इसमें, ठीक है। क्वेश्चन 60, टाइम ड्यूरेशन 40 हर मॉक टेस्ट के लिए। और 6-7 मॉक टेस्ट पर प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है, ठीक है। आप विजिट कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से। कोई भी दिक्कत हो टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं, ठीक है। मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। धन्यवाद, रखता हूँ।